بہت عمدہ بہت عمدہ. جی ہاں ذوالقرنین محمود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب خدا کی ایک صفت ہے کہ مادے سے بنانا، تو انسان مادے سے بناتا ہے تو اس کی صفت میں شریک نہ ہو. آواز بڑی کم آئی ہے، سمجھ آواز بہت ہی کم آئی ہے. اس خدا کی ایک صفت ہے مادے سے بنانا. جی جب کیا بولا؟ خدا کی صفت ہے مادے سے بنانا، تو ٹھیک، انسان بھی مادے سے بناتا ہے تو اس کی صفت میں شریک نہ ہو. خدا کی صفت صرف مادے سے بنانا نہیں ہے، مادے کو بنانا بھی ہے. کیا انسان مادے کو بنا سکتا ہے؟ نہیں، تو بھی شریک کیسے ہوا؟ لیکن ایک صفت میں تو شریک ہو گیا. اور خدا جب مادے سے بناتا ہے تو بغیر کسی نمونے کے بناتا ہے. انسان جو بناتا ہے نمونے کے ساتھ بناتا ہے، تو شریک کہاں ہوا؟ اچھا، تو جو جادو ہوتا ہے وہ اسباب کے بغیر ہوتا ہے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اسباب کے بغیر چیزیں جادو کیا کہا آپ نے؟ جادو اسباب کے بغیر ہوتا ہے. جی، جو کس نے کہہ دیا جادو اسباب کے بغیر ہوتا ہے؟ جادو خود سبب ہے. یہ دیکھیں نا، ابھی ذوالقرنین بھائی، یہ بھی جادو ہو رہا ہے نا کہ موضوع قرآن ہے اور آپ جادو پہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی جادو ہے. چلے ٹھیک ہے ذوالقرنین صاحب، آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا. بہت بہت شکریہ. مرزا غالب صاحب آئیے. اب تو آپ بھی چینل کھول لیا بھائی، کیا کہنے، مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. جی تو مطلب یہ کہ کیسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں حضرت. نہیں مفتی صاحب ایک مہربانی کریے کہ بیچ میں کوئی کوکروچ نہ بولے. نہیں آپ بولیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اگر اس کی ضرورت ہوگی مجھے کریکٹ کرنے کی، تو مجھے کریکٹ کرنے کے لیے عامر صاحب بول دیں گے، آپ کو نہیں کریکٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. مجھ سے کم نہ بولے بھائی. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ عثمانی دور سے لے کے اب تک کیا یہ صرف 2 ہی قرآن چل رہے تھے؟ نہیں، ہم تو خود ہی مانتے ہیں کہ قراتیں 10 ہیں، اور قالون ہے، ورش ہے، حمزہ ہے، کسائی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو 2 ہیں یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. حفص ان میں سب سے زیادہ پاپولر ہے، اس کے بعد ورش ہے. اور آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں ہم نے صرف حفص اور ورش کا کمپیریزن نہیں کیا، بلکہ حفص کے ساتھ کہیں قالون کا، کہیں حفص کے ساتھ حمزہ کا، کہیں حفص کے ساتھ دوری کا ہم نے کمپیریزن کیا ہے. تو یہ باقی جو قرآن تھے ان کو مطلب کیا ہٹایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر دبایا اور ہٹایا جا رہا ہوتا تو آج ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے. نہیں، صرف 2 ہی بچے، جیسے 2 ہی پاپولر رہ گئے نا. میں نے سنا 2 پاپولر ہیں بہت زیادہ. حفص جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد ورش ہے، اس کے بعد قالون ہے. مثلا سوڈان ہے، تو سوڈان اور لیبیا میں عام طور سے قالون کی قرات کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے. اور ورش کی جو قرات آپ کو ملے گی وہ ملے گی الجزائر میں، موراکو میں، آپ کو مصر میں دونوں ملیں گے بہت، اور بلکہ اور 3-4 ملیں گے. لیکن سعودیہ میں، گلف میں، یہ اسی طریقے سے آپ انڈیا، پاکستان وغیرہ میں آ جائیں، یہاں آپ کو حفص ملے گا. چونکہ یہاں پاپولیشن زیادہ ہے تو اس لیے حفص کے پڑھنے والے دنیا میں زیادہ ہو گئے. اگر سوڈان میں پاپولیشن زیادہ ہوتی تو قالون کے پڑھنے والے زیادہ ہوتے. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی مرزا غالب بھائی، میرے پاس ساری ہے، میں ساری پڑھتا ہوں، ساری ایکویلنٹ ہے میرے لیے، ساری کی ساری ہے، ہم کسی کو نہیں دبا رہے، اور ساری کی ساری پریزنٹ کی ہے میں نے. اور مرزا غالب صاحب ایک چیز اور، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے عالم کورس پڑھایا ہے، وہ یہیں پر ہمارے جہاں میں رہتا ہوں ہمارے قریب میں ایک مسجد ہے، تو وہاں وہ تراویح سناتے ہیں. تو ان کا معمول یہ ہے کہ 1 سال حفص میں، دوسرے سال قالون میں، تیسرے سال ورش میں، پھر حمزہ میں، جتنی قراتیں ہیں ہر سال وہ اس ایک قرات میں تراویح سنائیں گے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ قرآن کے ویریشن ہے، یہ بھی قراتیں ہیں. چونکہ سب لوگ اکثر جو جس جگہ ہم رہتے ہیں، انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، تو ہم لوگ تو صرف ایک ہی ورژن سے واقف ہیں. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جیسے آپ ایک ہی ورژن سے واقف ہیں، تو وہ جو حافظ صاحب عالم صاحب ہیں وہ سارے ورژنز میں قرآن پڑھتے ہیں. تو دبا کوئی نہیں رہا ہے، ہم تو اس کو اور لے کر آ رہے ہیں باہر. لیکن جو ایک چیز نیچرل ہوتی ہے کہ جب آبادی بڑھ جاتی ہے، انڈیا پاکستان کے لوگوں کی آبادی زیادہ ہے، تو اس لیے وہ ایک چیز پاپولر ہو گئی. نہیں بہت بڑھیا ہے. میر محمدی صاحب، انڈیا، پاکستان اور باقی. مرزا غالب صاحب 1 منٹ ٹھہریں تو صحیح، آپ سے بات نہیں کر رہے یار، ڈرے نہیں، پریشان نہ ہو. اچھا
अपना मुफ्ती साहब जो पाकिस्तान के अंदर कारी सुहेब मीर मोहम्मदी साहब हैं, जी उनका बकायदा एक इदारा है जो किरात के ऊपर और अहरुफ के ऊपर स्पेशलाइजेशन करवाता है। जी जी उनको हर रमजान के अंदर कुवैत में, कतर में तरावियों के लिए बुलाया जाता है और बकायदा अरब स्टूडेंट्स हैं उनके, और उनकी Good. बकायदा सर्टिफिकेट जारी होता है अहरुफ और जी। किरात के अंदर, वो बकायदा पढ़ते हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर। जी हाँ मिर्जा गालिब साहब, तकरीबन हर बड़े मदरसे में एक किरात का डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को सारी किरातें पढ़ाई जाती हैं, हर बड़े मदरसे के अंदर दुनिया में। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ लोगों को पता चले कि सिर्फ एक ही कुरान नहीं है, क्योंकि कान कुरान पक एक गए ही है मिर्जा गालिब साहब, कुरान एक ही है, एक तरह का नहीं है, एक नहीं तरह एक का ही नहीं है। तरह का है, एक ही है, वेरिएशंस अलग अलग हैं और हम खुद उसको प्रिजर्व करते हैं, खुद उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सारे के सारे वेरिएशंस अल्लाह की तरफ से आए हैं। अच्छा, तो अच्छा, जब देखें- ये देखें, जुबान के बारे में एक चीज हमारे जहन में रहनी चाहिए कि जुबान के जो मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं जो कि लिटरली मानी गई हैं। आप वेबसाइट्स पर चले जाएं, जैसे मिसाल रेख्ता है, रेख्ता एक उर्दू अदब की बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी लिटरेचर के जुबान के अंदर उर्दू जुबान है एक ही है। मिर्जा गालिब के अशार भी हैं रेख्ता पे भाई, मिर्जा गालिब के एग्जैक्टली पूरी गजलें हैं। तो लेकिन मैं वो हमारे चाह- लेकिन हमारे वाले मिर्जा गालिब को नहीं पता होगा। हाँ, मैंने इसीलिए उनको मुखातिब नहीं किया, मैंने कहा ये ना वो उधर बना के कहीं निकल ना जाएं, तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ आमिर साहब, ये एक कमेंट है, इसको पढ़ना चाहूंगा। मिर्जा साहब, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क़िराअत सबा की सनद है और मैं इंडियन हूँ, लीजिए। हमारे कमेंट में ये एक साहब है, चलें जी आमिर साहब। जी, मेरे पास इस वक्त, चलें ये कमेंट में आ गया तो मैं जिक्र कर दूं, मेरे पास इस वक्त चारों कुरान, कालून, दौरी और जो है आपका वर्ष और हफ्स इस वक्त पीडीएफ में मेरे पास मौजूद है। काफी लंबे अरसे से जब मैं किरात के ऊपर पढ़, तो मेरे पास पीडीएफ के अंदर मौजूद है कुरान, हमने पढ़े हैं उनको, उनकी जो लिखने का स्टाइल है वो भी पढ़ा है। ये हम सबको मालूम है, ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ सोशल मीडिया के ऊपर स्लेवरी के बारे में, ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ पॉलीगेमी के बारे में, ये कोई इंकशाफ नहीं हुआ किरात के बारे में। आमिर भाई, इंकशाफ हुआ है, लेकिन वो इंकशाफ हुआ है मिर्जा गालिब एंड कंपनी को। वो ये समझते हैं, मिर्जा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोग ये समझ रहे थे कि मुसलमानों के पास अलग अलग कुरान है। आज आपको ये इंकिशाफ हुआ कि ये अलग अलग कुरान नहीं है, कुरान एक है, उसके वेरिएशंस हैं। ये इंकिशाफ आज आपको हुआ है और आप इसीलिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में आपको मुश्किल हो रही है ना? ये तो मैं सही कह रहा हूँ। हमारे लिए आसान है डाइजेस्ट करना, क्योंकि हमें तो पता ही है कि जैसे मैंने हातून की वीडियो देखी थी, कई सारे कुरान लेके आती है, और हर कुरान हातून की वीडियो, ये कौन है? मेरे पास कुछ सवाल है, मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। हातून है ना, वो लेडी है, वो स्पीकर कॉर्नर पे आती है। मुझे नहीं पता, मैं वाकिफ नहीं हूँ। ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मतलब उसमें लफ्जों में भी थोड़ा बदलाव है, चेंजेज है, तो हमें तो खैर पता ही है। आज 1 घंटे तक जो हमने बात की है वही तो की है। अब जरूरी कोई है कि स्पीकर कॉर्नर पर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ होगा वो बिल्कुल वेल वर्स्ड होगा। आज मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे पहले से पता है, कुछ चीजें पहले से पता है। 1 मिनट, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको पहले से ये पता है कि अलग अलग कुरान है, या पहले से ये पता है कि एक कुरान के वेरिएशन है? क्या पता है पहले से? मुझे ये पहले से पता है कि मतलब कई नाम से कुरान में लफ्जों का कुछ अलग अलग सिस्टम। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको पहले से ये पता था कि अलग अलग कुरान है, ये पता था कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशंस हैं? दो में से किस ऑप्शन को चुनेंगे? नहीं, कुरान के अलग अलग वेरिएशंस हैं, ये आपको पहले से पता था? दिल पर हाथ रखकर कह रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की प्रिजर्वेशन के ऊपर आपको कोई एतराज नहीं है। आपको ये एतराज नहीं है कि कुरान में लफ्ज चेंज, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जेर जबर तक चेंज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जुमला है वो झूठ है। आपको पहले से ये पता था, आज की स्ट्रीम से पहले, कि अलग अलग कुरान है, क्योंकि आपने वो कौन हैतून कौन है उसकी वीडियो का भी हवाला दिया, हलीमा खातून। तो मैंने गूगल की फिर आपकी बात गलत हो गई। क्या? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे पहले से ये पता था कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशन हैं, दूसरी तरफ आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि आपको पहले से ये पता था कि अलग अलग कुरान है। तो बताइए, नाम अलग अलग है? नहीं, नाम अलग अलग है, खलफ कुरान, कालून कुरान, और ये हफ्स वर्ष और भी कई सारे थे, जो लगभग 29 या कुछ अलग अलग कुरान हुए ना। हाँ, तो अब इसको आप अलग वेरिएशन बोले या कुछ भी बोले, लेकिन लफ्जों का बदलाव अलग अलग कुरान हुए। मसलन हफ्स कुरान, वर्ष कुरान, कालून कुरान, आपके हिसाब से अलग अलग कुरान हुए ना?
नहीं, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें कुछ लफ्जों का चेंजेज हैं। अलग अलग कुरान है कि एक कुरान है? ये अलग अलग नाम से अलग अलग हैं। अलग अलग कुरान है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो बात शुरू में कही थी वो झूठ बोला था या लाइल्मी की बुनियाद पर कह दी थी। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशन है, आपको पहले से ये पता था, आज आपको ये पता चला, इसलिए मैंने कहा आज आपके सामने इंकिशाफ ये हुआ कि एक कुरान के अलग अलग वेरिएशन है। उसमें एक वेरिएशन का नाम है कारून, एक का नाम है कालून, एक का नाम है वर्ष, एक का नाम है हफ्स, वगैरह वगैरह। तो ये इंकिशाफ हुआ नहीं, ये मालूमात में आपके इजाफा हुआ, यही है। शुक्रिया। अब पता नहीं, इतने लफ्ज नहीं पकड़ पाता सर जी मैं। और चैनल बंद कर दे फिर फिलहाल। अरे यार देखो, ये मुफ्ती साहब मुझे अच्छा नहीं। देखिए, अगर एक मशवरा मिर्जा गालिब भाई, एक मशवरा देना था, एक बरादराना मशवरा देना था, एक बरादराना मशवरा मैंने देना था, जरा सुन लें। एक बरादराना मशवरा है, जरा सुन लें। चूंकि आपने चैनल खोला है और मैं बड़ी इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ और इंतहाई सिंसेरिटी के साथ आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा। वो ये है कि अगर आपने मिर्ज़ा गालिब के पीछे एक्स मुस्लिम लिख लें, तबाही का प्रसाद बनेगा, ये ज़रूर कर लें। बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्रिया, ये मैं कर लूंगा। अब बराए मेहरबानी आप थोड़ी देर चुप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, आप करते हैं ये अपने चैनल पे, आप ये हरकतें करते हैं? हाँ, वैसे ये बात है गालिब साहब, अभी हमने आपके चैनल के ऊपर वो उवैस गए थे, आपने तो यार उन लोगों को उनको बोलने ही नहीं दिया। उधर बदमाश बने होते हो हैं, इधर भीगी बिल्ली मुफ्ती साहब के सामने, ये तो फिर दिल का इज़न किस्मत जीजा। यार देखो, केडी की तरह शोर शराबा में भी टेंटे पोपो कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरी आदत नहीं है। कभी जाके देखना। अच्छा, उधर आदत है, इधर नहीं है। उधर रख के आता हूँ। अच्छा चलिए साहब, आज आप मेरी आदत है, मैं बोलता भी हूँ और सुनता भी हूँ, दोनों करता हूँ मैं। चलिए, आपकी बात मुकम्मल हो गई गालिब साहब। मुझे ये पूछना था कि जब हजरत उस्मान ने जब वो कुरान को किताबी शक्ल दी थी, तो सब कुछ हटा के सिर्फ एक ही बचा था? सब कुछ हटा के एक ही बचा का क्या मतलब? मतलब एक ही किताब तैयार करवा के उसकी अलग अलग कॉपीज करवाए थे ना? एक जगह 7, एक जगह 8 उसकी अलग अलग कॉपीज थी। जी हाँ, हाँ, मतलब एक ही किताब की शक्ल, मतलब एक ही किताब तैयार हुई थी, उसकी अलग अलग कॉपीज करवाए थे, ऐसे ही था ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो इतने सारे वेरिएशंस कहाँ से आ गए जिसमें अलग अलग लफ्ज हैं? यही तो बात है, असल में आप लोगों को थोड़ा सा इल्मी एतबार से अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। आप अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये एतराज नहीं होगा, सुनेंगे और वो भी क्रिश्चियन से। आप लोगों के जो सारे एतराज होते हैं ना, सब क्रिश्चियंस की तरफ से होते हैं, और इनके जवाबात हम हजारों मरतबा दे चुके हैं। तो कुरान करीम की जो कॉपीज हजरत उस्मान ने तैयार कराई थी, हजरत उस्मान का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, यानी उनकी जो तैयार किया हुआ जो कुरान था, उसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये था कि वो सारे किरातों को अकोमोडेट करता था। यानी उस तरीके से उसको लिखा गया था कि अभी तो मैं देसी नियो को ये बात बता रहा था कि एक ही लफ्ज के अंदर वो इस तरह लिखा गया कि अलग अलग किरातों को अकोमोडेट किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि ये जो किरातें ये बाद में निकली हैं, ये सारी की सारी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में या उनके दौर में जो तैयार करदा मुसहफ था उसमें मौजूद हैं। अच्छा, इन सारी किरात में से यहाँ कोई लफ्ज मुकम्मल अलग हो, कोई लफ्ज हो, या फिर मान लो जहाँ वाव हो या वाव ना हो, या अलिफ हो या अलिफ ना हो, इसको कैसे लिखवाए? मतलब मैं उसका भी जवाब दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है जी। सही मुस्लिम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि अगर रीजनिंग बेसिक लेवल पे हो ना, तो मुफ्ती साहब आप बेसिक लेवल की बात कीजिए इनसे। ठीक, अब जो बात कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगी जी। गालिब साहब, मेरे कुछ क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा आंसर दीजिएगा मुझे। सूरह फातिहा तो आपको पता होगा ना? तो मेरा सवाल ही गायब कर रहे हो आप मेरा सवाल ही गायब। गालिब साहब, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, मैं उसका जवाब दूंगा। उस बीच में कुछ कह रहे हैं, मुफ्ती साहब दे दीजिए ना, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, नहीं बैठा हूँ। यही तो मसला, आप भाग जाते हैं। हाँ ना, ये मसला यार, आप मेरे पास 3 मरतबा आए हो, इससे पहले 3 ही मरतबा भाग गए हो, इसलिए मैं आज आपको भागने नहीं दूंगा। आप रुके, आप भागना मत आज जी। नहीं, आप दे दीजिए, मैं उनको सुन लूंगा। यही वजह है। नहीं, अरे आपसे जवाब ही नहीं चाहिए ना सर जी। सही मुस्लिम साहब, ऐसा है, सुनिए, मैं पहले जवाब दे दूं, उसके बाद में आप इनसे सवाल कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, जहां पर कुरान करीम में मसलन किसी हर्फ की कमी या ज्यादती आई है, तो उसको किस तरीके से उसको हाशिए फुटनोट के ऊपर लिखा गया। अगर वो लफ्ज उसको अकोमोडेट कर रहा था
अगर उसको लिखने में, मिसाल मैंने देसी नियो को मिसाल दी थी नुनशिरुहा और नुनशिजुहा और ननशुरुहा, तो इसको इस तरीके से लिखा गया कि नुनशिजुहा भी पढ़ सकते हैं और ननशुरुहा भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मान लें अगर एक जगह आज हमने उसको कवर किया वअन युज़हिरा और एक जगह है औ अन युज़हिरा, तो एक जगह वाव है और एक जगह औ है। अब इस तरह नहीं लिखा जा सकता कि दोनों को अकोमोडेट करे, तो उसको साइड में जो फुट नोट है उस पर लिख लिया गया ताकि जो भी उसको पढ़ने वाला है उसको पता चल जाए कि ये भी कुरान का हिस्सा है। जी, तो मतलब ये चीज, इसका मतलब कुछ मिलेगा सबूत, दलील, मतलब कहाँ, किसी वेबसाइट या कोई किताब या कुछ? मेरे पास किताब है डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी की, और उसका नाम है दिरासात हौलल कुरानिल करीम, अरबी में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश में उसकी PDF मौजूद है। इस मौजू के ऊपर अगर आप पढ़ लेंगे और बगैर बायसनेस के, बगैर किसी तासुब के आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुसलमान हो जाएंगे। हजरत ये वही हैं जो इजिप्ट के स्कॉलर हैं? नहीं, इन्होंने इजिप्ट से पढ़ा है, उसके बाद फिर ये सऊदी अरब आ गए थे, उसके बाद फिर ये सऊदी अरब आ गए थे, और ओरिजिनली ये आजमगढ़ के हैं। हमारे मिर्जा गालिब तो गोंडा के लगे। मिर्जा गालिब साहब गोंडा के हैं ना? उधर ही हूँ, आजमगढ़ साइड का ही हूँ। हाँ, तो आपके लहजे से पता चल रहा है। तो बहरहाल वो आपके पड़ोसी थे, लेकिन 1950s में वो इजिप्ट गए थे और उसके बाद फिर सऊदी अरब में वहीं के वो नेशनल हो गए थे। उनकी ये किताब है और बाकायदा उनकी ये रिसर्च पेपर है जो कैम्ब्रिज से उन्होंने PhD की है। ये किताब का नाम बता दीजिए मुझे आप। अरबी में है दिरासात हौल कुरानिल करीम। मेरे सर जी इतना टाइट नाम नहीं, अरबी में मिर्जा गालिब साहब आप अरबी पढ़ लेते हैं? अगर नहीं तो मैं उर्दू रिकमेंड कर देता हूँ। उर्दू पढ़ लेते हैं आप? उर्दू तर्जुमा है इस किताब का? इस किताब का नहीं तर्जुमा, इसका नहीं है। ये मेरे पास PDF है, इसका उर्दू में नहीं है। अगर आप उर्दू चाहते हैं मैं आपको एक बता देता हूँ, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आप बता दीजिए। हाँ, उसमें एक है नजरिया इख्तलाफ क़िराअत और नजरिया तहरीफ कुरान। ठीक है, ये PhD थीसिस है मोहम्मद फेरोजुद्दीन का, जो कि लाहौर शेख ज़ैद इंस्टीट्यूट है उससे उन्होंने किया उर्दू के अंदर। इसमें ओरिएंटलिस्ट के और दीगर क्लासिकल लिटरेचर के हवाले दिए गए हैं, क़िराअत के हवाले से, बड़ी शानदार है। उसमें मसले हल किए गए हैं जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं। एक ये है, दूसरा एक वेबसाइट है किताबुस्सुन्नत.com, उसमें रुश्द पाकिस्तान से एक निकलता है, गालिबन अब्दुर्रहमान मक्की या मदनी है गालिबन, जो उसके चीफ एडिटर हैं। उन्होंने निकाला है 3 जिल्दों के अंदर 700 सफ़हात पर 3 जिल्दें हैं, जिसको कहते हैं क़िराअत नंबर 1, क़िराअत नंबर 2, क़िराअत नंबर 3। PDF में मिल जाएगा। नहीं मिलता मुझे ईमेल कर दें या बता दें, अभी मैं लिंक उसको कर दूंगा कमेंट के अंदर। वो PDF के अंदर अगर आपने समझना है ना कि क़िराअत और अहरुफ असल में है क्या, और जो लोग इससे तहरीफ कुरान का कीदा लेते हैं, यानी इख्तलाफ क़िराअत या इख्तलाफ अहरुफ से जो ये कहते हैं कि कुरान में तब्दीली हो गई और कुरान मुख्तलिफ हो गए हैं, उस पर उन्होंने बाकायदा क्लासिकल हवाले दिए हैं और अहदीस से तवातुर से साबित एक एक सनद के ऊपर। ये जो मैंने आपको किताब दी है, इसमें क़िराअत की एक एक सनद पहली ही सदी से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और 14वीं सदी तक क़िराअत की असनाद जिक्र की हैं कि कैसे कुरान की सनद जाती हैं और तवातुर के दर्जे पर पहुँचती हैं। और ये तहकीक भी बड़ी ज़रूरी है कि इख्तलाफ क़िराअत और जो सब अहरुफ है, इस पर जो उलमाए इल्मुल क़िराअत के अंदर कुर्राआ ने, जो रिसाइटर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के, इल्मुल क़िराअत के, उन्होंने बाकायदा उसूल वज़ा किए हैं। जिस तरह उसूल जरा और तादील है ना हदीस, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हदीस ज़ईफ़ क्यों है या हदीस मौजू क्यों है या हदीस की सनद में क्या है, दरायत में, ऐसे ही क़िराअत के एक एक इख्तलाफ के ऊपर, क़िराअत शाज़ा, क़िराअत मुतवातिरा, क़िराअत अहाद, इनके ऊपर बात की है। जलालुद्दीन सुयूती ने तो इत्कान के अंदर की है कि क़िराअत मुतवातिरा क्या है, क़िराअत अहाद क्या है, क़िराअत शाज़ा क्या है, क़िराअत मौज़ूआ क्या है, इसके ऊपर बात की है। तो उर्दू के अंदर आपको आर्टिकल्स की शक्ल में वो मिलेगा, पढ़ने का मजा। और मिर्जा गालिब साहब मुख्तसर अगर आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें मुकम्मल बात नहीं आएगी, आपके लिए हो सकता है मुकम्मल हो, हमारे लिए मुकम्मल नहीं है वो। उलूमुल कुरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, ये भी उर्दू में है, इसको पढ़ सकते हैं। सही मुस्लिम साहब आप कुछ कह रहे थे मिर्जा गालिब? तो ये इसमें मिल जाएगा जवाब, इसमें मैं बोल रहा हूँ ये जवाब मिल जाएगा इस चीज का कि मतलब जो आप बोल रहे थे कि उस्मानी कुरान वो मुझे नहीं पता कि उर्दू की किताब में मिलेगा। जो मैंने जहां से पढ़ा है मैं तो उसी का हवाला दे सकता हूँ ना, मुझे क्या पता कि उर्दू में लिखा है कि नहीं। मैंने जहां से पढ़ा है मैं उसका हवाला दे सकता हूं। हजरत जो आर्टिकल मैंने दिया ना, जो आर्टिकल मैंने दिए हैं ना, जो मैंने बताया ना, उसमें क़िराअत, अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ, क़िराअत नंबर 3 के अंदर, रुश्द क़िराअत नंबर 3 के अंदर इस चीज का जवाब दिया गया है। तकाबुली, एक डॉक्टर है अब्दुल मन्नान रासिक, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने तकाबुल, अब्दुल मन्नान रासिक। प्राइवेट चैट में डालो, मैं लिंक को कॉपी कर लूं।
चलो मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसमें उन्होंने तकाबुल करा के कंपैरेटिव बताया है कि इस जगह पर और एक कुरान लिखा गया है जिसमें फुट नोट्स के अंदर ये बयान किया गया है कि भाई ये तकाबुल है, एक एक पेज को लेकर उन्होंने बात की है उसको, ठीक है। और उसके लिखने के आमिर भाई मेरा मानना है, आमिर भाई एक मिनट मिर्जा गालिब भाई, आमिर भाई मैं सोचता हूँ कि मतलब बिल्कुल बेसिक अरबिक भी नहीं पढ़नी आती है तो फिर उस किताब से मेरे ख्याल से ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। चलो हुज्जत तो तमाम हो जाएगी ना। सही मुस्लिम भाई अब वो आए हैं हमारी हुज्जत, और हो सकता है इनकी वजह से कई और लोग सुन लें और पढ़ लें। हाँ, बात असल में ये है कि बहुत से लोगों को फायदा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे मिर्जा गालिब साहब, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। कभी आपने सूरह फातिहा पढ़ी है आपने कभी, मतलब पढ़ते रहते हैं भाई। पर अच्छा ठीक है, उसमें जो माला का 3 लेटर्स लिखे हुए हैं जिसको हम मालिकी यौमिद्दीन की आयत में पढ़ते हैं, पता है ना आपको ये बात? एक बात दोहरा दीजिए क्योंकि पता नहीं मेरा नेटवर्क कमजोर है या आप लोगों का। अच्छा, मालिकी यौमिद्दीन ये आयत तो कई बार पढ़ी होगी ना आपने? हाँ ठीक है, आपको पता है कि मुसहफ में ये कैसे लिखा हुआ है? अब कभी आपने कोशिश की इसको इन्वेस्टिगेट करने की, कैसे लिखा हुआ है मुसहफ में? जो बात आप सही मुस्लिम कह रहे हैं ना, वही बात एग्जैक्टली अभी जब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, तो मैंने देसी न्यू को यही एग्जांपल दी थी मलिक की। हाँ, वो मैंने सुना, वो इन्होंने सुनी होगी, मिर्जा गालिब साहब आपने सुनी होगी, तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए वो नई बात नहीं है, ये सुन चुके हैं ऑलरेडी, कि मैंने इनको बताया कि वो जिस तरह लिखा गया है वो दोनों किरातों को अकोमोडेट करता है, मालिकी भी और मलिकी भी। ठीक है, उससे आगे की बात करता हूँ मैं, आपके लिए थोड़ा हैवी होगा मिर्जा गालिब साहब, फिर भी सुन लीजिए आप। कुरान के अंदर ना एक आयत है, आयतुल कुर्सी, बड़ी हैवी आयत है, पता है आपको? आप एक काम कीजिएगा, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा खोल लीजिएगा, मालिकी और मलिकी के दोनों फहम उसे एक आयत के अंदर बयान किए गए, ये आपको खोजना है कैसे। इसीलिए जो किरात है उसमें मालिकी और मलिकी दोनों इसीलिए जो है इनकलकेट किया गया ताकि दोनों फहम एक ही लफ्ज में आ जाए, पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाए। ये अगर नहीं होता तो कुरान को डीमेरिट मैं खुद डीमेरिट मानता अगर किरात ना होती तो, क्योंकि जितना मैं समझ पाता हूँ, जितनी डेप्थ में मैं जाता हूँ, मुझे और चाहिए, और मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, और मटेरियल चाहिए, मेरे लिए काफी नहीं है किरात। नहीं देखो, वहां तो तीनों लफ्ज एक ही रहते हैं, जैसे ये बता रहे थे कि मतलब लफ्ज वहां सेम है, चाहे उसे मलिकी पढ़े या मालिकी पढ़े, ठीक है। तो जहां लफ्ज है वो सबको पता है कि पहले जेर जबर नहीं होते थे, ठीक है, ये सबको पता है, शुरुआत में जेर जबर नहीं थे। तो जहां लफ्ज सेम है वहां की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जहां लफ्ज जवाब मैंने दे दिया है, उसका जवाब मैंने दे दिया मिर्जा गालिब, और जिस किताब से दिया है वो आप किताब देख लीजिएगा, और हो सकता है कि जो किताबें आपको हमारे आमिर हक साहब ने बताई हैं उसमें आपको ये मिल जाए, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दे सकता हूँ। मैंने प्राइवेट चैट के अंदर लिंक दे दिया मिर्जा गालिब, मैंने प्राइवेट चैट के अंदर लिंक दे दिया है, इससे आप जब ओपन करेंगे नीचे फोल्डर के अंदर पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा गालिब साहब। अच्छा, एक शिकायत है हमें, वो ये कि जब आप हमारी वीडियो लगाया करें ना, तो आपके भागने का सीन जो है ना वो काट के ना लगाया करें। देखिए ये बात गलत है, पूरी वीडियो लगाया करें। पिछली बार तो अभी जैसे मान लीजिए अभी बात मुकम्मल हुई, अब आपने जो है उसमें क्या किया कि पिछली मरतबा आप मेरे चैनल पर आए और एकदम गायब हो गए। जब आपने वही वीडियो अपने चैनल के ऊपर लगाई तो एकदम गायब होने की वीडियो वो हिस्सा काट दिया। वो क्यों काटा भैया आपने? बता रहा हूँ, जब हमने और आपने जब मामले को पब्लिक के हवाले कर दिया कि पब्लिक इसमें फैसला कर लेगी खुद ही, अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसके बाद बचा क्या था। अच्छा चले एक मिनट, चलिए मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि पब्लिक के हवाले कर दिया था, तो वो हिस्सा काटने की क्या जरूरत है? वो हिस्सा काटने का मतलब ये है कि आपको ये लग रहा था कि कहीं पब्लिक ये ना समझ ले कि मैं भाग रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ मैं दूसरी वीडियो बना देता हूँ, वो जोड़ देता हूँ वो हिस्सा, अगर इतना यही मसला सबसे बड़ा है तो वो जोड़ देता हूँ। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या हो, तो नहीं बता रहा हूँ ना, लेकिन आपको तंबीह करना इसलिए जरूरी है ताकि आगे जो है उसमें आप एहतियात करें। हमारी वीडियो आप जितना लगा, हमने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रखा है कि आप हमारी वीडियो लगा सकते हैं, कभी स्ट्राइक नहीं भेजेंगे, लेकिन भाई पूरी तो हमारी तरफ से सर जी, हमारी तरफ से भी मुकम्मल ऐलान है। मैं बाकायदा कुछ चैनल के नाम भी बता ही दूं ऐसे ही, जैसे मैं हूँ साहिल भाई, सुलेमानी जलेबियां, फैज आलम, एडम सीकर और समीर, फिलहाल इतने चैनल हैं। कुछ भी करो, बस मतलब गाली गलौज के सिवा है, बाकी कुछ भी करो कोई मसला नहीं, जितने सवाल आते हो, जितनी क्रिटिसाइज करना हो, कोई मसला नहीं है। जबरदस्त। अच्छा मिर्जा गालिब साहब, मैं मुफ्ती साहब एक चीज बस लास्ट पूछ, मिर्जा गालिब साहब सुन रहे हैं कि वो आप कुछ चैलेंज वगैरह कर रहे हैं अपनी लास्ट वीडियो में, कुछ चैलेंज किया? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ मुफ्ती साहब के लिए
کیا डिबेट ہوا؟ के लिए اچھا چیلنج کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو کیا ہے جی challenge؟ ہاں جی کیا چیلنج ہے بھائی؟ آپ نے ایک بات بولی تھی کہ جو بھی حضور اللہ کے خلاف، حضور کی شان کے خلاف، صحابہ کے خلاف جائے گی وہ باتیں ہم مانیں گی نہیں. تو مجھے ایک چیز بتا دیجیے کہ آپ کیا اس سے کسی انسان کا اصل کریکٹر جان سکتے ہیں؟ آپ ہمیں اس وقت ڈیبیٹ کرنی ہے یا ڈیبیٹ کے لیے وقت طے کرنا ہے؟ وقت طے کر لیجیے تو بہتر رہے گا. زبردست. اس میں اگر کریں گے تو اس وقت بات کریں گے، اور اس کی ویسے تو اسی وقت بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کے پیچھے لائن اتنی لمبی لگی ہوئی ہے تو ان جی کی حق تلفی ہوگی، اور میرے پاس صرف 15-20 منٹ اور رہ گئے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ سب لوگ بیچارے آئیں اور 2 لوگوں میں ہی بات ختم ہو جائے. تو بات اس وقت ہو سکتی تھی لیکن بات تھوڑا لمبی ہو جائے گی، 15 منٹ تو کم سے کم چاہیے، اس لیے آپ اگلی جی مرتبہ آ جائیے، انشاءاللہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے سر جی، اگلی دفعہ آ جائیں گے اسی بات کو لے کے. چلیں، بہت بہت شکریہ. اوکے جی، شکریہ. بہت جی ہاں، اگلے کالر ہیں این کے. مفتی شمائل صاحب، اہلاً وسہلاً، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ جی الحمدللہ، بس آپ حضرات کی باتوں سے مستفید ہو رہا ہوں. ایک پوائنٹ کا اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ اجازت دیں گے. جی آپ کر سکتے ہیں اسی وقت. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو احرف سبا کا اختلاف ہے، جی ان تمام اختلافات کے باوجود، چاہے وہ اعراب کے اعتبار سے ہو یا حروف کے اعتبار سے یا کلمات کے اعتبار سے یا اور بھی جو 7 آپ نے گنوائے شروع میں، ان تمام اختلافات کے باوجود آپ کسی بھی فرق کو لے لیں، قرآن کے اعجاز، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی. جی ہاں اگر بالکل. یہ اعتراض ویلڈ ہوتا کہ جس نے جو چاہا وہ بڑھا دیا، تو 2 چیزیں لازماً پائی جاتی. ایک تو کانٹرڈکشن ہوتا، اس میں تعارض جی پایا جاتا. جی دوسری چیز کہ فصاحت اور بلاغت ہر حال میں ختم ہو جاتی. لیکن جس طرح قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو سب آتے احرف میں کسی ایک حرف میں بھی آپ اس طرح کی صورت لا کر دکھا دے، تب بھی اسے قبول کریں. رائٹ بالکل، بہت صحیح کہا، ماشاءاللہ، زبردست پوائنٹ، ماشاءاللہ. ایکسلنٹ. جی ہاں، این کے صاحب. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت